On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anagha, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about GST returns and reports in Tally Prime. Before going ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24 CRM and Skill India. So now moving ahead with the today's topic. So now the speakers are here. The presentation will be conducted by Miss Sonali. So Sonali, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the live demonstration will be done by Miss Payal. So Payal, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the resource person, Mr. Bhagwati Dhandaria. Sir, are you here? Yeah, Anga, I am available. Thank you. A hearty welcome all of you. So I request Sonali and Payal to move ahead with your presentations. Yes, ma'am. Thank you. Hello, good evening all. Myself Sonali, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of the management and entire team of Rajlakshmi Solutions, I would like to welcome all the participants present here. So moving ahead to our today's topic is GST returns and reports in Tally Prime. Next slide, please. GSTR1 reports in Tally Prime. Tally Prime provides various GST reports to file GST returns very smoothly with 100% accuracy. GST return is a document that will contain all the details of your sales, purchase, tax collected on sales, and tax paid on purchase. Once you file GST returns, you will need to pay the resulting tax liability. टैली प्राइम में हमें जीएसटी रिपोर्ट्स प्रोवाइड किए जिसके थ्रू हम जीएसटी फाइल रिटर्न्स स्मूथली फाइल कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न एक ऐसे डॉक्यूमेंट है वहां पे हमें सेल, परचेज, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स के कंटेंट्स ये ऑल डिटेल्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे ही हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं वहां पे हमें हमारा टैक्स लायबिलिटी पे करना जरूरी रहता है। तो ये पूरा फॉर्मेट्स जो है हमें GSTR1 के रिपोर्ट्स थ्रू मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। GSTR2 reports in Tally Prime. GSTR2 reports include the details of all inward supplies made in the given period. The inward supply details included B2B invoices to registered and unregistered dealers, import of goods and services, adjustment to purchases in debit credit notes, nil rated invoices, advance paid and adjusted एंड टैक्स क्रेडिट रिवर्स एंड रिक्लेम। GSTR2 के रिपोर्ट्स में हमें ऑल इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स प्रोवाइड होती है। जैसे कि इनवर्ड सप्लाईज डिटेल्स में आ जाता है हमारे रजिस्टर, अनरजिस्टर B2B इनवाइसेस, उसके बाद आते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की इनवाइसेस। जैसे कि हमने परचेस के अगेंस्ट कुछ एडजस्टमेंट के एंट्रीज किए तो उनके डेबिट एंड क्रेडिट नोट के इनवाइसेस, नील रेटेड के इनवाइसेस, अगर कुछ एडवांस पेड किया है या उसके अगेंस्ट कुछ एडजस्ट किया है तो वो इनवाइसेस, वो पूरा जो रिपोर्ट्स है और टैक्स क्रेडिट रिवर्स, ये पूरा जो रिपोर्ट्स है हमारा इनवर्ड सप्लाई का हमें GSTR2 के रिपोर्ट्स थ्रू मिल जाता है, जो कि हम अभी आगे लाइव डेमोस्ट्रेशन में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। GSTR3B reports in Tally Prime. GSTR3B must be filed by everyone who has registered for GST. In Tally Prime, you can view GSTR3B in the report format with tax computation details. Also, you can generate GSTR3B, report the data in the GSM format and upload it to the portal to file the returns. GST रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें GSTR3B रिटर्न
फाइल करना जरूरी होता है, जो कि हमें टैली प्राइम में जीएसटी रिपोर्ट्स का फॉर्मेट दिया गया है, वो भी टैक्स कंप्यूटेशन डिटेल्स के साथ। हम जीएसटीआर 3B का डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं जीएसएन थ्रू, जो कि जीएसएन फॉर्मेट हमें यूज होता है हमारा रिटर्न फाइल करने के लिए। जीएसएन फॉर्मेट थ्रू हम हमारा रिटर्न डायरेक्टली पोर्टल से फाइल कर सकते हैं। हमारा जीएसटीआर 3B का रिपोर्ट्स हमें टैली प्राइम में मिल जाता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। GSTR reports in Tally Prime. With Tally Prime, you can file GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B return in 3 easy ways: by generating GSN from Tally Prime, by using the GST offline tools, or by filing directly on the GST portal. GST Tally Prime exports GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B written in the latest format, compatible with latest version of validation APIs used in offline tools. Tally Prime में हमें GST रिटर्न फाइल करने के लिए 3 जो इजी हमारे वेज है, जो फॉर्मेट है रिटर्न फाइल करने के लिए, तो टैली प्राइम के थ्रू हम कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा डिफॉल्ट टैली में जो फॉर्मेट दिया गया है वो है हमारा जीएसएन फॉर्मेट, जिससे हम जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा जीएसटी ऑफलाइन टूल्स। ऑफलाइन टूल्स भी हम जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जीएसटी ऑफलाइन टूल्स जो है हमें जीएसटी के पोर्टल के थ्रू मिल जाता है। और हमारा थर्ड है वो हम डायरेक्टली पोर्टल से हमारा जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हम अगर जीएसटी ऑफलाइन टूल्स के थ्रू रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन रहता है टूल्स का वो हमें टैली में एप्लीकेबल दिया गया है। तो इस तरीके से हम हमारा जीएसटी रिटर्न है तो टैली प्राइम से इजी लेवल से हम वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर द लाइव डेमो। आई रिक्वेस्ट मिस पायल टू प्रोसीड अहेड फॉर द लाइव डेमो। थैंक यू। Thank you, Sonali ma'am, for the presentation. Ma'am, my screen is visible. Yes, it's visible. Okay. Hello everyone. Myself Payal Mistry. I am representing live demo on behalf of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. आज हम लोग का टॉपिक है जीएसटी रिटर्न एंड रिपोर्ट्स इन टैली प्राइम। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जीएसटीआर 1, 2 एंड 3 में जो भी मिसमैच आती है या फिर जो भी रिपोर्ट है या फिर जेसन फाइल हो कैसे एक्सपोर्ट करना है रिटर्न में। जैसे कि फर्स्ट है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स एंड देन जीएसटीआर 1। यहाँ पे मैंने 3-4 एंट्री की हुई है, जैसे कि सेल्स परचेज की एंट्री की हुई है मैंने। यहाँ पे मेरे टोटल वाउचर्स नंबर है। यहाँ पे मेरे कुछ वाउचर्स नंबर कुछ एंट्रीज मेरी मिसमैच में बता रहे हैं। अगर आपको ऐसे जीएसटीआर 1 में अगर आपको कोई ऐसे मिसमैच में बताते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नॉट प्रोवाइडिंग, तो आप वहाँ पे एंटर करिए। वहाँ पे एंटर करने के बाद आपको पार्टी जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे मिसमैच बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आपका जो राइट पार्टी का जीएसटी नंबर आपको मेंशन करना है, जिसकी वजह से यहाँ से वो एरर में से हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे अल्फा प्रोविजन करके पार्टी है, वहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर करती हूँ। यहाँ पे मैंने उसका जीएसटी नंबर लिया हुआ है जो मेरा इनवैलिड है, तो यहाँ पे मैंने उसका वैलिड लिया हुआ है। सेकेंड इसे मैंने कॉपी किया, देन यहाँ पे पेस्ट करती है। देखिए मेरा राइट जीएसटी नंबर है, इससे वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो अभी यहाँ से निकल जाएगा एरर। इसे हम लोग को रिफ्रेश करना होगा, अल्फा प्रोविजन। इसे मैं सेव करती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मिसमैच में एंट्री आपको शो कर रही थी जीएसटीआर 1 में वो यहाँ से निकल चुकी है। एज इट इज हमें यहाँ पे जो सन स्टोर करके वो भी हम लोग को इनवैलिड इंफॉर्मेशन में बता रही है। वहाँ पे भी यहाँ पे जीएसटी का एरर है, तो यहाँ पे भी मैंने लिख के रखा हुआ है सन स्टोर का प्रॉपर जीएसटी नंबर। तो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ पार्टी के वाउचर में जाके। यहाँ पे जाके मैंने उसका जो वैलिड जीएसटी नंबर है वहाँ पे मैंने मेंशन किया है।
ऐसे में इसको सेव करती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी, इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा, इसलिए मैं इसे सेव करती हूँ। ये देखिए, यहाँ से वो जो मिसमैच था GSTR1 में, वो यहाँ से निकल चुका है। वैसे ही आपके अगर आपको कुछ मिसमैच में एंट्री आती है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन समरी, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे सारे HSN समरी इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने HSN मेंशन नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको 1 by 1 आपको HSN कोड मेंशन करने होंगे एज इट इज। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अमूल मिल्क करके है, वहाँ पे मैंने HSN कोड मेंशन किया हुआ है, लेकिन बालाजी फूड्स करके वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक कोड डालती हूँ, बालाजी फूड्स, एंड देन यहाँ पे बिस्लरी में डालती हूँ 7458 एंड बिस्लरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जैसे ही HSN कोड डाला, वो यहाँ से मिसमैच में से निकल चुका है। एज इट इज आपको ये दो जो वाउचर है, इसमें भी आपको एज इट इज वैसे ही करना है। सेकेंड, आपको यहाँ पे दिया गया नो रिलेवेंट इन द रिटर्न। तो यहाँ पे सारी आपको जो GST की आपने जितनी भी सेल्स परचेज की एंट्री की हुई है, वो आपको सारी यहाँ पे शो करती है। यहाँ पे फिर B2B इनवॉइस की यहाँ पे आपने जो एंट्री की हुई है, जैसे कि यहाँ पे बता रहे आपको नंबर, वाउचर काउंट, टैक्सेबल वैल्यू, इंट्रीगेट टैक्स, यहाँ पे सारे आपको इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू के साथ यहाँ पे शो करती है। वैसे आपने जितने भी HSN समरी अगर आप HSN कोड के साथ की होगी, वो आपको सारी यहाँ पे ऐसे मेंशन करेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, HSN कोड, डिस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ सप्लाई, UPC, टोटल क्वांटिटी, वाउचर। यहाँ पे आपको सारे भी जितने भी HSN समरी वो सारे आपको यहाँ पे शो करेंगे। एज इट इज मैं यहाँ पे GSTR2 में जाती हूँ। वैसे ही मैंने यहाँ पे सेम टोटल वाउचर में 8 क्रिएट किए हुए हैं, इंक्लूडिंग इन रिटर्न में मैंने परचेज की एंट्री की हुई है, परचेज रिटर्न्स की। एंड सेकेंड, मैंने यहाँ फिर से यहाँ पे इनवॉइस विथ मिसमैच इन इन्फॉर्मेशन में आ रहे हैं, जहाँ पे मैं एंटर करती हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे मेरे इनवॉइस इनकम्प्लीट मिसमैच में थे। जैसे मैंने GSTR1 में किया हुआ था, एज इट इज आपको यहाँ पे भी वैसे ही करना है। सेकेंड, यहाँ पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन HSN समरी, तो आपको अगर कुछ HSN समरी में मिसमैच आता है तो वही आप वाउचर में एंटर करके वो वाउचर आप करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे B2B इनवॉइस 34A, तो यहाँ पे आपने जो एंट्री की हुई है B2B इनवॉइस की, वो सारी यहाँ पे आपको यहाँ पे शो होगी। सेकेंड, क्रेडिट डेबिट नोट रेगुलर 6G, यहाँ पे जो आपके माइनस में जो एंट्री रहेगी वो आपको यहाँ पे शो करेंगी। एज इट इज आपको आपने HSN समरी की जितनी भी एंट्री की हुई है वो आपको यहाँ पे शो करेंगी। जैसे कि सोनाली मैम ने आपको बताया कि यहाँ पे आपको नील रेटेड एंट्री, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो टाइप्स आप एंट्री करोगे वो सारे टाइप्स आपको यहाँ पे एंट्री शो करेंगी। GSTR3 भी हम लोग का सेल्स परचेज दोनों का है। जैसे कि आपको सोनाली मैम ने बताया कि यहाँ पे आप जेसन फाइल, ई रिटर्न वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं ई रिटर्न में जाती हूँ। अगर आपको जेसन फाइल तो हम लोग के 3 फॉर्मेट है। फर्स्ट, एक जेसन से हम लोग कर सकते हैं, सेकेंड हम लोग ऑफलाइन टूल से कर सकते हैं, थर्ड हम लोग टैली के पोर्टल पे से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टैली में से जेसन फाइल करना है तो यहाँ पे आपको फाइल फॉर्मेट में जेसन सिलेक्ट करना है, आपका जो ड्राइव में आपको पाथ सिलेक्ट करना है वो करना है, एंड यहाँ पे आपके फाइल का नाम देना है। जैसे आप फाइल का नाम दोगे वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी जेसन फाइल में। एंड सेकेंड, आप ऑफलाइन टूल भी डाउनलोड करके जेसन फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। थर्ड, आप GST पोर्टल पे से भी कर सकते हो। एज इट इज आप यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाईज, रिवर्स चार्जेस की जितनी भी रिलेटेड या फिर जीरो रिलेटेड एंट्री रहेगी आपको यहाँ पे सारी शो करेगी। यहाँ पे GST एनुअल कंपटीशन में आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपने जितनी भी एंट्री की हुई है GST की रिलेटेड वो सारी आपको टैक्सेबल अमाउंट में यहाँ पे शो करती है। जैसे कि आप देख सकते हो लायबिलिटी में आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई विद टैक्सेबल पेबल, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी एंट्री B2C, B2B और क्रेडिट डेबिट नोट की जो भी एंट्री है वो सारी यहाँ पे उसकी रिपोर्ट शो कर रहा है।
समरी आउटवर्ड एंड इनवर्ड में। यहाँ पे सेकंड मेरा है जीएसटी रेट सेटअप। जीएसटी रेट सेटअप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने किसी में जीएसटी रेट सेटअप नहीं मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसका शॉर्टकट दिया गया आपको, सेट रेट में जाके यहाँ पे आप उसका रेट मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट रेट में जाके इसका मेंशन किया होता है एज इट इज। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चॉकलेट करके है, यहाँ पे मैं सेट रेट करती हूँ। अभी इसका रेट है 28%। यहाँ पे मैं टैक्सेबल में गई, टैक्सेबल में जाने के बाद यहाँ पे मैंने इसका 28 लिया रेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका 28 रेट यहाँ पे शो कर रहा है आपको। यहाँ पे उसका स्टॉक ग्रुप बालाजी फूड्स पापड़ करके है, एप्लीकेबल फ्रॉम डेट दिया जाता है, HSR टैक्सेबल यहाँ पे आपको इस टाइप से यहाँ पे मेंशन किया जाता है, और यहाँ पे आप ऐसे शो भी कर सकते हो और एक साथ आप रेट मेंशन भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको MAP UBOM UKC मतलब जो आपने सारे स्टॉक यूनिट्स क्रिएट किए हुए आप यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे कि मैंने बॉक्स क्रिएट किया और नंबर में क्रिएट किया हुआ है, पीसीस में क्रिएट किया हुआ है, सारे आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कुछ अपडेट वगैरह करना है तो आप यहाँ पे अपडेट यूकेसी पे क्लिक करके आप सारे जो भी आपका यूनिट कोड रहेगा वो आप ऐसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, एंड कंट्रोल लेकर के सेव भी कर सकते हो। देन मेरा लास्ट है अपडेट पार्टी जीएसटी नंबर। अभी मेरे यहाँ पे नेम ऑफ ग्रुप दिया गया और नेम ऑफ लेजर थे, यहाँ पे मैं ऑल आइटम सिलेक्ट करती हूँ, लेजर भी ऑल आइटम पे सिलेक्ट करती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मेरे कोई जीएसटी नंबर मेंशन नहीं दिखाई दे रहे। जैसे मैं ऑल लेजर सिलेक्ट करूंगी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे सारे नंबर जीएसटी नंबर पार्टी के वाइज शो कर। अगर आपने कोई जीएसटी नंबर मेंशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे इनवैलिड में आएगा, और आप यहाँ से भी जीएसटी नंबर मेंशन कर सकते हो अगर आपका इनवैलिड है या फिर आपने मेंशन नहीं किया है तो। और एज इट इज आपको आप यहाँ से ऐसे सेव कंट्रोल लेकर के सेव कर सकते हो। थैंक यू। Thank you, Sonali and Payal, for your presentations. So it's a time for an overview of the today's session. So it's over to you, Bhagwati sir. Yeah, thank you everyone. Thank you, team. Thank you, Anga. So today's session is a GST report. Now we are running a GST series in last few days. So today's Saturday session is a GST report in the Tally Prime. So in terms of the GST reports, many of the people are using all these things working, that all the working, they are doing the transaction in the Tally, but they are, exporting the data, then they are doing all the reports, they are preparing all the reports in the Excel file normally. And according they are also managing the format with the according GST portals, right? So, but in the Tally Prime, agar aapke paas hai, so you have no need to do this exercise. Just you put the data, purchase, sales, they will not pay, stock adjustment, all these things you can do in the Tally Prime, and all the data will automatically updated according the prescribed format that is already updated in the Tally Prime according to the Government of India. So that data will automatically flow in the Tally Prime and that particular prescribed format. So all the report will generated by default, that report will generate by default. You have no need to do any of the practice. But many of the cases जब हम डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, तो जैसा कि एग्जाम्पल के लिए पायल ने बताया कि आपका जीएसटी नंबर गलत हो गया. Same way, there is a various type of the things are there. Error, huge numbers of the type of the errors are there, जो हमारी एंट्री के ट्रांजेक्शन के टाइम में ही हो सकती है गलती. तो उन सभी गलतियों को हाउ टू आइडेंटिफाई, वो आप टैली में देख रहे हैं कि टैली इज वेरी स्मार्ट वर्किंग लाइक एआई टूल्स. वो आपको आइडेंटिफाई करके दे रही है कि आपको कहाँ पर कौन सी गलतियां हो रही हैं. यू कैन चेक दैट रिपोर्ट. एंड नेक्स्ट लेवल, फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया बट रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिया. नो, बट रेक्टिफिकेशन का भी ऑप्शन हमने आपको वहीं पर दे दिया. हाउ टू रेक्टिफाई, क्या एग्जैक्ट एरर है, आपने जितने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसमें एरर क्या आ रहा है, वो एरर्स किस रिलेटेड है, कौन से सब्जेक्ट मैटर से है, तो उसके लिए आपको क्या करना है. वी आर प्रोवाइडिंग द सजेशन ऑल्सो. अकॉर्डिंग दैट यू कैन चेंज दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. एरर को रेक्टिफाई कीजिए
save this transactions, that transaction will automatically remove from your error window. So टैली प्राइम में अगर आपने कोई मिस्टेक कर ली है अगर ट्रांजेक्शन करने में, और अगर आपको रिटर्न फाइल करना है, तो बिफोर गोइंग अहेड टू द रिटर्न फाइलिंग आपको एरर रिपोर्ट पहले क्लियर करनी है। वो एरर किसी भी लेवल पे किसी टाइप का हो सकता है, और आफ्टर देन यू कैन फाइल द रिटर्न्स वेरी स्मूथली। मैं एग्जांपल के तौर पे हमने आज तीन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को देखा है, और भी कई सी रिपोर्टें हैं। मैं एनुअल ऑडिट की बात करूंगा तो रिपोर्ट GSTR 9 भी है, 9C भी है। तो वेरियस टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स आर आल्सो अवेलेबल इन द टैली प्राइम, जहाँ पर आपको मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कंपोजिशन डीलर की भी बात करूंगा, उससे रिलेटेड भी आपके रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर। सो एवरी टाइप ऑफ द एरर्स, एवरी टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स यू कैन डू फ्रॉम द टैली प्राइम इटसेल्फ। आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो कि टैली के अंदर ही आप मैनेज कर पाएंगे। तो दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ दिस थिंग्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर आप ये पूरे ट्रांजेक्शंस डेटा एक्सपोर्ट करके एक्सेल में कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेंटेन द 2 डेटा, एक तो टैली, सेकंड आपको एक्सेल के डेटा मेंटेन करने हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि आपने जो भी रिटर्न फाइल की है कहीं ना कहीं आपको सेव करके रखनी होती है। बट टैली प्राइम अगर है, आपने सब कुछ अगर इससे किया है, तो आपके पास पूरा डेटा एक ही जगह मिल जाता है, जो फ्यूचर डेटा मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। बिकॉज यू विल ऑलवेज मेंशन मेंटेन द डेटा ऑफ द योर टैली, बिकॉज जहाँ सन्डे डेब्टर्स, सन्डे क्रेडिटर्स, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर देयर, आप उसको रेफर करने के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप यूज करते हैं और डेटा को सेव करके रखते हैं। तो डेटा आपको वहाँ पर आपको ड्यूअल डेटा मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको टैली प्राइम का डेटा मैनेज करने से हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम रिटर्न फाइलिंग पर। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यू आर वेरी फ्लैक्सी, मतलब आप टैली प्राइम में तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना एकदम ईजी है। आप चाहते हो एक्सपोर्ट करके JSON फाइल कन्वर्ट करके मैं रिटर्न फाइल मैनुअली करूँ, आप चाहते हो कि डायरेक्ट टैली से रिटर्न फाइल कर दूँ, तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे चाहते हो। So whatever you want, you can design yourself and you can do this according your expectation. So this is the overall scenario कि आपका काम कैसे स्मूथ हो सकता है, how you can run your business smoothly without any hurdles, without any extraordinary expertise in terms of the computer knowledge and in terms of the accounting and compliance knowledge, क्योंकि everything is by automate। तो इसके लिए कोई आपको अलग से स्पेशलिटी लेने की जरूरत नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आपको स्पेसिफाई, आपको बिजनेस में स्पेशलिटी है, यू कैन डू योर बिजनेस। टैली प्राइम विल हेल्प यू all the compliance, all the other things in terms of the technology. This is the overall idea of these sessions. So same way we are running a GST series. So upcoming Saturday definitely again हम लोग आपको कुछ GST से related topics लेंगे। तो because year is going on ending, year ending जा रही है, so in this particular time में आपके GST के पूरे डेटा, आप हाउ टू स्मूथ योर डेटाबेस एंड यू कैन एंड बुक क्लोजिंग इज वेरी स्मूथर, यू कैन क्लोज द बुक्स। सो इन सब चीज़ों को इजी करने के लिए हमने आपको ये सीरीज ली है। सो ज़रूर आप नेक्स्ट वीक में भी आप इसको अटेंड करें, तो यू विल गेट द एडवांटेज। अगर GST से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, या आपको टैली प्राइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ योर अकाउंट मैनेजर, दे आर वर्किंग विथ यू फ्रॉम राजलक्ष्मी सॉल्यूशंस। आप उनके साथ कनेक्ट करें। चैटबॉट में हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, साथ में मेरा नंबर्स भी है, हमारे सपोर्ट के नंबर्स हैं। यू कैन डायरेक्टली कॉल टू आवर सपोर्ट नंबर्स, यू कैन गेट द सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड। आपको ये जितने भी सेशंस हो रहे हैं, ये सभी सेशंस हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड है। एनी टाइम यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू रेफर दैट, यू कैन यूज दिस ऑल दैट, यू टेक द एडवांटेज इन योर बिजनेस। इसके अलावा भी टैली के सभी फीचर्स, एवरी फीचर्स के सेशंस हमने किए हैं, और सभी वीडियोस आपके हमारे यूट्यूब चैनल में है। अगर आप टैली को बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो हमने काफ़ी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशंस हमने अपलोड किए हैं, जहां आप अपने टाइम के अनुसार आप यूट्यूब चैनल खोल करके उसको सीख सकते हैं और आप अपने बिजनेस बहुत स्मूथली रन कर सकते हैं।
So this is your overall idea of these sessions. And next इसके अलावा हमारे time to time काफी offers चल रहे हैं, जैसे Tally you can use anywhere everywhere. So right now there is a big advantage in the Tally cloud, Tally on clouds. You can use your Tally anywhere. आपका ऑफिस चालू नहीं है, आप ऑफिस में नहीं हो, संडे का दिन है, मंडे का दिन है, मिड नहीं चाहिए, anytime you can open your Tally in your system anywhere. So इसके लिए आप Tally cloud में हमारी अभी एक स्कीम चल रही है, that is a good offer. आप हमारे अकाउंट मैनेजर से टच कीजिए, you will get the advantage. And we already in the multiple segments, so you can how to improve your business, how to generate more and more inquiries and leads, how to manage your efficiency, how to manage your resources, how to manage your productions, how to manage your inventory, how to manage your accounting, how to do the forecasting, planning, all the stuffs. इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास हम जो प्रोडक्ट्स में है लाइक Tally, SAP and Bittrex, ये तीनों प्रोडक्ट आपको काफ़ी हेल्प करते हैं. तो you can connect with our team and you can get the advantage. That's it from my side. And guys, over to you. Thank you. Okay, thank you, sir. So if anyone have questions related to the today's topic, please raise your hands or mention your questions in the chat box. So please check whether there are any questions. No, Anna. I think it's the right time to close this session. Okay. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media to get the latest updates. So thank you so much for joining the today's session. So now we'll wind up the session. Thank you, everyone. Thank you, everyone. See you soon in the next session. Thank you. Bye.